know, my name is Dr. Shubda Chaudhary and my PhD is in International Relations from JNU. Specialization मेरा West Asia, जिसको Middle East भी बोलते हैं, and Arab media like Al Jazeera, Al Arabiya. मेरी किताब आई है 2022 में, which is The Silent Revolution of Tahrir Square. My master's is from University of Westminster, London. I have lived in 7 countries, and that is when I was traveling, I believed that there has to be something out of all these travelogues which can finally culminate into a certain kind of pedagogy जो आपको पढ़ने में मदद करे, or whatever I've seen in the world, I can showcase it to others so that the students are ahead of their time and space, and even mine at whatever age you are, and I'll not disclose my age. I have written for TRT, Al Jazeera Frontline Citizen. My work has also been translated into Arabic. I have given guest lectures at University of Ohio and West Florida, and presented research at Cambridge University in UK. Iske alawa also I'm involved in different things, but that is my short introduction for all of you who don't know me. Now, today we are going to start about primarily 5 things. एक घंटे की क्लास है आपकी, जिसमें हम बात करेंगे etymology का and epistemology का. Then we'll talk about slave trade, American Revolution, California Gold Rush, and American Civil War. ये 5 topics के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला question ये होता है कि when you are teaching IR, and specifically when I was also a student, so my professor always used to say that if you are studying IR, you have to know history, politics, economics, and culture of this country you're studying. And I was like, hey. But the point is, कि as I grew, I realized how true he was, because if you do not know the history of it, you will not be understanding the current foreign policy और अभी क्या हो रहा है और कैसे चीजें बदल रही हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा. और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, there's a politics of language, there's a politics of dementia, यानी कि भूल जाने का भी एक politics होता है. एंड इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेडागोजी में पढ़ाई नहीं जाती हैं. बहुत सारी चीजें नैरेटिव के बेसिस पे होती हैं. हर नैरेटिव का अपना एक पर्टिकुलर पर्पस होता है. तो इसीलिए ये 5 मुद्दे आज के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन वी विल गो टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस, क्योंकि तब आपको यूएस थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ हाउ डू यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. हिस्ट्री को समझना 2 तरीके का बेसिक इशू होता है. पहला इशू है हिस्ट्री को समझने का, विच इज कॉजल रिलेशनशिप. कॉजल रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई भी कॉज हुआ, कोई भी रीजन हुआ और उसका फिर इफेक्ट हुआ. दिस इज कॉल्ड एज इन रिसर्च कॉजल रिलेशनशिप. किसी भी चीज के कारण कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुआ, कॉन्टेक्स्ट हुआ, जिसके कारण आपका दूसरा कॉन्टेक्स्ट पैदा हुआ. इट इज ऑल अबाउट कॉजेस एंड इफेक्ट. बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको लीनियर फैशन में बोला कि एक कॉज होता है तो एक इफेक्ट होता है. इसके ऊपर बहुत लोगों ने डिबेट किया, एंड द डिबेट वाज कि इट इज नॉट एम्पिरिकल. एम्पिरिकल का मतलब, जैसे जस्ट आई ऑलवेज डू दिस टेस्ट विद माय स्टूडेंट्स, व्हिच इज मेरे हाथ में कितने पेन्स हैं? हाउ मेनी पेन्स कैन यू सी इन माय हैंड? 4. बाकी के 4. 4. But this is a red pen, which is a ballpoint pen. This is Ad Gel. This is a pen tab pen. These are 4 different kinds of, like at least 3 different kinds of pens. This cannot write on paper. This cannot write on my pen tab. If I had a marker, it would write only on the whiteboard. So how do you, मतलब empirical का मतलब होता है, कभी भी कोई स्टडी अगर हम empirically करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लॉजिकली फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है. बट देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन लाइफ और इन एकेडेमिया. दिस इज नॉट नेचुरल साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें यू हैव अ नेचुरल फैक्ट एंड दैट इज इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट दिस इज अ पाइराइट स्टोन, राइट? इट इज अ पाइराइट स्टोन.
ये igneous stone है, this is a citrine stone. It is a fact, right? This is a fact. But in social sciences, you cannot have facts in that way. So how do you understand कि कोई एक fact जो है वो logically आप उसको सही मान रहे हैं और दूसरा fact जो है वो गलत है या फिर वो narrative नहीं है? There's no one absolute truth. तो बहुत सारे scholars ने ये empirical study के खिलाफ आवाज उठाई और they said कि social sciences are not empirical in nature. तो दूसरा एक कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद आया, which was कि अगर आप कोई भी चीज समझ रहे हो तो उसके बहुत सारे causes होते हैं. There are unlimited causes for a particular thing. फिर उसका इफेक्ट होगा, लेकिन आप इफेक्ट मत समझो, अंडरस्टैंड कि उस इफेक्ट का पर्पस क्या है. तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या आईआर पढ़ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट. इसी को टेलिलॉजी बोलते हैं. मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाया है, बट इन रियलिटी दीज आर सब्जेक्ट्स इन देयर ओन वर्थ, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी का भी नाम जो होता है, एनीथिंग, उसका ओरिजिन क्या है. जैसे one of my students had her birthday on 31st and she said we had a bonfire. So I couldn't control myself. I said, do you know what is the meaning of bonfire? Where did it originate? So she said, yes, in medieval English, it was an actual fire of bones, human bones. That is bonfire. तो एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी शब्द का शुरुआत कैसे हुआ और उसका ओरिजिन क्या है. और दूसरा जो शब्द होता है जो बहुत एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ नॉलेज. शब्द तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या आपका नाम, मेरा नाम, विल इट कंटिन्यू इन द नॉलेज बेस ऑफ ह्यूमंस? और जो शब्द कंटिन्यू करते हैं, जो चीजें नॉलेज में आती हैं, जो हिस्ट्री में बनता है, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं. दैट इज अ क्रिएशन ऑफ नॉलेज. तो हिस्ट्री समझने के लिए 1961 में E.H. कार ने, ब्रिटिश डिप्लोमेट एक्चुअली, ही रोट दिस बुक व्हाट इज हिस्ट्री. और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया कि हिस्ट्री जो होती है, इट इज नॉट न्यूट्रल एंड हिस्ट्री इज नॉट डेड. कैन माई कैट गो अवे प्लीज? History is not neutral and it is not dead. History is something which is a continuous dialogue between the present and the future. आप हमेशा historians को नई नई किताबें लिखते हुए देखेंगे. How are they writing? If something already exists in history, how are they writing about it? And every time some new angle, some new epistemology, some new idea, ये किस तरीके से आ रहा है. तो जो हिस्टोरियन होता है, अकॉर्डिंग टू E.H. कार, वो पहले अपना एक नैरेटिव रखता है कि क्या नैरेटिव उसको बताना है, और उसके बाद वो रियलिटी फिर सिलेक्ट करता है. तो जो भी हिस्टोरियन होता है वो कहीं ना कहीं एक बायस रखता है. तो यूएस के हिस्ट्री में ये बायस किस तरीके से दिख रहा है? यूएस की हिस्ट्री में ये बायस दिख रहा है when I went to, for example, when I went to western coast of US. So we were taken to a trip. उस समय Twilight book series और movie series बहुत famous थी. So we were taken to few of the islands in the Pacific Ocean, and we were staying in Seattle, near Seattle actually. And वो पूरा जो island था, it was of native Indians. And they made us see the native Indian dance forms and वहाँ का जो food है, and ये जो चीज अभी हुई है, I apologize for it. तो एक सेकंड, आपको जब बोला जा रहा है कि यहाँ क्लास होगी तो आपको यहाँ से हट जाना है. चलिए. और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है इन द फर्स्ट क्लास. हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट. एनीवे, तो जो हिस्टोरियन है वो हमेशा सिलेक्टिव होता है. व्हेन वी वेंट टू द नेटिव इंडियन आइलैंड्स,
दे सेड कि अमेरिकन्स का अपना कोई कल्चर नहीं है एंड दे डोंट हैव देयर ओन ट्रेडिशन. हमारा खाना खाओ और हमारा डांस देखो, हमारे टूल्स देखो, हमारे म्यूजियम्स देखो, एंड विच वर रियली रियली स्पेक्टेकुलर. एंड इट वाज द सेम काइंड ऑफ ट्राइबल हेरिटेज, जो ट्राइबल हेरिटेज आपको झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा. डिफरेंट बट similar in terms of the origin of tribes. And that comment stuck with me. I said, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यूएस ऑब्वियसली इतनी सारी किताबें हैं बड़ी बड़ी जो हमें बताती हैं कि यूएस का क्या हिस्ट्री है, इतना बड़ा हिस्ट्री है, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि यूएस का हिस्ट्री नहीं है? बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट, आई रियलाइज्ड कि इन ऑल ऑफ दीज बुक्स नेटिव इंडियंस का हिस्ट्री मेंशन नहीं किया जाता है. एंड सेकेंडली, जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं उनका तो बिल्कुल ही मेंशन किया नहीं जाता है. What is the reason behind it? There is a certain kind of politics of dementia which is involved in this. तो EH कार्ड ने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कोई भी हिस्टोरियन, आप किसी भी हिस्टोरियन की किताब पढ़िएगा, वो कभी न्यूट्रल नहीं होती है. You cannot read anything and just say this is a fact. How does it become a fact? There's an agency of collaboration जो बताता है कि क्या चीज किताबों में लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए, क्या चीज आपको जानना चाहिए, क्या आप चीजें नहीं जानते हो. तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, and they play a role in us understanding what exactly is the impact of history. Now, what does US consists of? जैसे you can see here, सबसे नीचे इधर फ्लोरिडा है. It is very very famous for sugarcane plantations. Texas इधर है. Texas is very famous for natural gas and oil exploration. इधर फिर मेक्सिको है. Then here you have California, जिसमें लॉस एंजलिस आता है. You have Oregon. Here is Washington. I went here, right? Then you, towards the right side, जो eastern side of US है, which is towards the Atlantic Ocean, you have Pennsylvania, Virginia, New York, MIT, Cambridge, all these famous universities are here. And आपका South Carolina में district of Washington है. It is a federal district, and that is the capital of US. It is called as Washington DC, or in short form, if you go anywhere in US, they'll say I'm going to DC. DC itself means District of Columbia, which is in South Carolina over here, right? And Washington State यहाँ पे है. उसी तरीके से there is a New York City and there is a New York State, right? There are 5 unincorporated territories, there are 9 outlying territories, and 329 Indian reservations. मतलब जहाँ पे नेटिव इंडियंस रहते हैं और जहाँ पे सिर्फ फेडरल रूल चलता है यूएस का. तो बहुत ही ज्यादा इसका and 4th of July 1776 is celebrated as their Independence Day. Now when we talk about United States of America, इसका बहुत ही अच्छा एक strong history है, which is very interesting. आज से 12,000 साल पहले, 12,000 years before, आपके जो native Indians जिनको कहा जा रहा है, they would migrate from Siberia, which is in Russia, to today what you call as US, and they inhabited the place. There were many natives who came from Alaska and inhabited the place. Now, when I was studying this fact, I was like, हैं? ये कैसे हो सकता है? मतलब चले कैसे? क्योंकि Siberia is here, right? And Siberia was one of those places जब Russia में, for example, during the Tsarist regime, जब किसी क्रिमिनल को पनिश करना होता था तो फिर उसको साइबेरिया भेज दिया जाता था, बिकॉज वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि you'll eventually die. So these natives who came to America, they were specifically from Siberia. Now when I say America, there is a politics of that language also. शुरुआत के दौर में बोला जाता था अमेरिकाज. अमेरिकाज मतलब
plural hai, it is not a single America, right? So it contains North America, Central America, and South America. Like if you go to Brazil, so they are also Americans actually, even Argentina, right? So it is divided into North America, Central America, South America. America never meant USA only. So this is the politics of etymology also. कि कैसे कोई एक शब्द, अब अमेरिका का मतलब whenever you say it means अच्छा USA, but it can be Uruguay and Paraguay also. These are the poorest countries of South America, right? But we don't think about it because इस तरीके से ये common nomenclature नाम में आ चुका है. Now, what if I told you कि America is named after an Italian explorer? एक बहुत ही like 1500 के करीब में अमेरिगो वेस्पूसी नाम के एक इटालियन मर्चेंट थे. अब मर्चेंट हैं तो ओके, एंड एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर, जिनको फ्लोरेंस यानी आज के इटली ने भेजा था टू नेविगेट एक्सप्लोर. इन्होंने बताया कि अच्छा देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंड मास बहुत बड़ा सा विच इज टुवर्ड्स द अटलांटिक, द अदर साइड ऑफ इट, एंड इनके नाम पे अमेरिका शब्द आया. There was not an American who named America as such. It was Amerigo Vespucci कि जिसके नाम पे ये नाम आया. नेक्स्ट है, इसको अब लिखा कैसे? लेकिन अमेरिका तो 1000 लोगों का नाम होगा, तो ये फैक्ट कैसे बना कि इसी के नाम पे हम अमेरिका बनेंगे? तो here is how history comes into play. आपके मार्टिन वाल्डस मुलर, जिनका नाम I'm 100% pronouncing it wrongly, he was a cartographer. Cartographer यानी कि जो मैप्स बनाता है. And he was the person जिन्होंने जाके 1506 में या 1506 में, हम लोग जीरो को ओ बोलते हैं, 1506 में ऐसे अमेरिका का मैप बनाया जिसको you can see, and this is how America was established. And the interesting fact is कि वो अमेरिका जब उन्होंने बताया तो that was not your North America, it was actually South America जिसको अमेरिका इन्होंने बोला था अपने मैप में. So you see how terms get changed with time. पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ पे आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. मतलब यूनिटी की बात कर रहे हैं ना अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एविडेंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एविडेंस नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एविडेंस आया on 2nd of January 1776 in a letter which was written to Joseph Reed. Joseph Reed, as you can see in the right side, was just a military support of George Washington. उनके मिलिट्री में हेल्प करने वाले जोसेफ रीड के किसी फ्रेंड ने उनको लेटर लिखा. उस समय लेटर लिखे जाते थे. तो ऐसा बोला कि अच्छा ये कंट्री अगर बनेगी और ये सारी चीजें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम रखा जाएगा, which they eventually adopted on 4th of July 1776. नेक्स्ट, जब आपके इनहैबिटेंट्स आए, जितने भी आए, जैसे हमारे लिए इंडिया में इट इज वेरी वेरी, अगर गंगा ना हो या ब्रह्मपुत्र या इंदस ना हो तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है फर्टाइल नहीं होगा और हमारा बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन नहीं शुरू होता, इवन इफ इट इज इंदस वैली सिविलाइजेशन एज अ फैक्ट. तो यूएस के पास ऐसा क्या था which helped civilization? So you see the eastern coast. ईस्टर्न कोस्ट में आपकी 3 नदियां हैं. एक नदी है और 3 लेक्स हैं. लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन and Lake Huron, which is connected to your St. Lawrence River. It's also a canal which connects all of them. This is the lifeline of US. This is the lifeline of United States of America. And आप notice करना ये eastern side पे है. तो जो British आएंगे, they will inhabit the eastern side because it is much more fertile. It is much more navigable. And इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं through canals and shipments, all of it. So फिलहाल all of you are with me. Anyone has any doubt?
No, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन रेज द हैंड एंड आस्क. अगर आप इसको बेटर देखिए तो इट इज लाइक this side. So you can see New York, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Maine, Vermont. तो ये सारा, इसके ऊपर कनाडा है, ये सारा आके ब्रिटिश कोलोनाइज करते हैं. दे डोंट गो टुवर्ड्स द वेस्ट और टुवर्ड्स इवन द मिडल ऑफ अमेरिका. ये 13 कॉलोनीज यहाँ पे बनाते हैं, and it's all on the eastern side because you have the Great Lakes and St. Lawrence over here. And this was very well thought of because इसमें navigation है, trade है. आप through the Atlantic Ocean, if you're bringing slaves, you can ship them through the river and canals, and then you can through land transport them anywhere. तो जो ब्रिटिश आते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन करते हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ यूएस. अर्ली कोलोनाइजेशन बहुत ही, मतलब आई वाज सिटिंग विद माय अमेरिकन फ्रेंड्स. अरे मोटोरोला जी म्यूट हो जाते हैं. तो अर्ली कोलोनाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल, I was sitting with my American friends and they said कि history is such, like debatable in the sense कि सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया. नहीं किया. नहीं किया. Christopher Columbus went to this small island called as Puerto Rico और उसने ये डिस्कवर किया जो वेस्ट इंडीज में आता है. इट इज अ करीबियन आइलैंड. एंड क्रिस्टोफर कोलंबस के ऊपर बहुत प्रेशर था फ्रॉम पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश एम्पायर्स, जो समय बहुत ज्यादा पावर में थे. द रीजन वाज कि इसने बहुत बार एक्सपेडिशंस किया था और जब भी एक्सपेडिशन करता था तो obviously a lot of money will be invested in it. Now when a lot of money is invested in it, ये 2-3 बार जा चुका था और इसको कोई यूएस या फिर कुछ नहीं मिला. तो इसका लास्ट एक्सपेडिशन था, as you can see by his face, very grumbled. तो it was the last expedition. बहुत पैसे लगे हुए थे इस एक्सपेडिशन पे और उसने पोर्टो रिको ढूंढा था. He did not find United States of America. So you see how facts can be, again, if you don't know properly, things can be difficult to understand. तो ये 1493 में हुआ था. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे वास्को ड गामा, ही केम टू, पोर्टुगीज ने गोवा को कोलोनाइज किया, बट वास्को डिड नॉट कम टू गोवा. एक्चुअली ही केम टू कोची, कैलिकट, 1498 में, which was the port at that point of time. And from there he went, it took him 10 years to go to Goa. So I was making fun of this and I was like, 10 साल लगे इसको गोवा जाने में. Then I remembered कि हम कब last time गए थे. But anyway, so 1493 में पोर्टो रिको को डिस्कवर किया जाता है. तो अब आप देखिए कि आपका जो अमेरिका है, अमेरिका यहाँ पे आई विल मीन यूएसए, इसको किस किस ने क्या क्या कोलोनाइज किया था. रशिया ने अलास्का को किया था, लेकिन अलास्का में कोई रहता नहीं था, बहुत ठंडी पड़ती है, कौन रहेगा, लेकिन कोलोनाइज किया हुआ था, उसका लैंड था. स्पेन ने फ्लोरिडा को किया हुआ था और न्यू मैक्सिको को किया हुआ था. शुगर प्लांटेशन, इनके पास शुगर नहीं है तो उगता ही नहीं है, तो उनको प्लांटेशन के लिए चाहिए था कोई. सो दे स्पेन स्टार्टेड विद फ्लोरिडा एंड न्यू मैक्सिको. फ्रांस ने मिसिसिपी रिवर के आसपास का, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अगेन जो नीचे है, न्यू ऑर्लियंस और कनाडा को कॉलोनाइज किया था. इनफैक्ट कनाडा को मिनी फ्रांस बोला जाता था. एंड ब्रिटिश ने पूरा आपका ये जो 13 डिफरेंट ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, इन सबको यहाँ पे बनाया हुआ था. ईस्टर्न साइड में यहाँ पे यू कैन सी द ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस रिवर है इस साइड, इसको पूरा लिंक किया, इस पे काम किया, एंड देन दे टुक ओवर द एंटायर ईस्टर्न साइड. अब ये इंग्लिश या ब्रिटिश सेटलर्स थे कौन? व्हाई डिड दे कम टू दिस लैंड?
मतलब क्या जरूरत था अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको गोल्ड चाहिए था और नया रूट चाहिए था और इतना लैंड है एंड एवरीथिंग. व्हाई डिड दे कम? वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन वाज क्रिश्चियनिटी. अगर मैं बहुत ही सुपरफिशियली आपको बताऊं तो क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट्स हैं. एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक क्रिश्चियनिटी जो होता है, इट स्ट्रांगली बिलीव्स दैट सैल्वेशन जो होता है, यानी हमारे कॉन्सेप्ट में मोक्ष या निर्वाणा, कैन बी गिवन बाय जीसस, but Pope has the power to forgive your sins. That is why the entire concept of confession in a church. And जो clergy है वो decide कर सकता है the everyday decisions of a person, कि बच्चे का नाम क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ लैंड लोगे, कितने बार आओगे चर्च में, what is the mass timing, क्या you have to donate, all of these, when you'll marry, how you'll marry, what is the kind of condition of marriage, adoption, reproduction, delivery, all of it church had an intervention in that. तो ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है. इसके रिएक्शन में आपका प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी शुरुआत हुआ बाय मार्टिन लूथर किंग. यस राधिका. And I have a doubt. Yeah. Ma'am, in USA, many people colonized. So there were native Indians they colonized. And you said that the people from Serbia went from Russia to US. So why they are called native Indians? Why not Russian? Very good question. Because they went and settled over there 12,000 years before, and there's no historic record of why the origin of the term of native Indians started. Because there was nothing as such called as Russia also at that point of time. I'm talking about 12,000 से भी ज़्यादा. जो Paleo Indians थे, वो they come from the Pleistocene era. Pleistocene era is like 125 million years से लेके 12,000 साल पहले तक खत्म होता है. Till the time agriculture was discovered, उस समय there was no ऐसे continental divisions और ये पूरा regional divisions. So, ma'am, when the other countries colonized America, so native Indians were colonized basically, those Yes. people who lived there. Yes. जैसे we were colonized and our tribes were colonized. Okay, ma'am. जिनको हम Thank you, ma'am. आदिवासीज बोलते हैं. तो अब यहाँ देखो कि वहां पे पॉपुलेशन में कौन कौन लोग रह रहे हैं. एक तो आपके नेटिव इंडियंस हैं, और नेटिव इंडियंस का भी अलग अलग ट्राइब्स है. जैसे इंडिया में ही, झारखंड में ही आपको कितने संथल्स होंगे, ओरांव्स होंगे, मुंडाज होंगे, आपके फिर अलग अलग और ट्राइब्स हैं, जैसे गद्दी ट्राइब है, फिर आपके और अलग नोमैडिक हर्डर्स है जम्मू एंड कश्मीर में. अलग अलग टाइप के ट्राइब्स इंडिया में भी है ना. तो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ अमेरिका में भी बहुत, मतलब देयर वर अराउंड 1000 डिफरेंट ट्राइब्स. अब ये ट्राइब्स को बांट दिया गया, मतलब कोई कोई ट्राइब्स को अपने सहूलियत में रख लिया फ्रांस, कोई कोई ट्राइब्स को अपने सहूलियत में रख लिया यूके, कोई कोई ट्राइब्स को अपने सहूलियत में रख लिया स्पेन, कोई कोई ट्राइब्स को अपने सहूलियत में रख लिया थोड़ा बहुत पोर्टुगल. तो उन्होंने ट्राइब्स का भी बंटवारा कर दिया था. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उनकी यहाँ पे चली वो वहां पे भी चली. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि 1600 में ब्रिटिश वेंट टू अमेरिका ऑल्सो, 1600 में दे केम टू इंडिया ऑल्सो. दैट इज द टाइम when they started colonizing. तो कमिंग बैक टू ये जो ब्रिटिश थे जो यहाँ पे आते थे, कौन थे? They were dissenting Christians, यानी they were Protestants. Okay. Protestants ये believe करते हैं कि whatever relation you have of prayers and how you define salvation and how you think about God is your personal business, and Jesus is there, but church is not very important. Church is just a social institution. Only God has the power to forgive your sins. Church doesn't, Pope doesn't. And regular church membership आप लीजिए, Bible पढ़िए, all of it. But जो salvation होता है, God is so great that God will give salvation to everyone. You don't have to work hard to prove it or whatever. But
The entire concept जैसे work is worship and अपना काम अच्छे से करो, बाकी everything will be taken care of, that came from Protestant Christianity, which eventually will give rise to capitalism later. But Protestant Christians came to this particular piece of land, जो ये British थे, they were Protestant Christians. पहला obviously अब कोई भी colonize करेगा किसी को भी तो war होगा ही. तो obviously उस समय कैमरा नहीं था, तो we have just paintings of it. The first war was the King Philip War, which took place in 1657 to 1676. जो यूरोपियन colonizers और नेटिव इंडियंस के बीच में लड़ा गया. लेकिन इवेंचुअली इतने साल चला कि सब थक गए एंड वो आपस में दे केम टू अ लाइक सम काइंड ऑफ गठबंधन कि सेटलर्स को क्या चाहिए था, खाना चाहिए था, एनिमल्स चाहिए थे, लेबर चाहिए था, और जो नेटिव्स थे उनको गन्स चाहिए था और यूरोपियन टूल्स चाहिए था. सो दे डिसाइडेड कि वो फ्रांस डिसाइड किया कि उसके जो ट्राइबल बेल्ट है उनको ये सब चीज प्रोड्यूस करेगा. नो दैट इज अ स्मार्ट वेरी आइडिया कि आप आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं. इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया. Whenever you provide arms, it always leads to destruction. तो गन्स प्रोवाइड किया उन्होंने, ब्रिटिश ने अपने गन्स प्रोवाइड किए, स्पेन ने अपने किए, और फाइनली इतना लड़ने झगड़ने के बाद they eventually came to a conclusion कि ठीक है चलो whatever, हम लोग एकदम ठीक से रहते हैं, but a lot of people died in it. At the same time, there was something called as the Transatlantic slave trade which was taking place. Now what is this? यहाँ पे देखो, this is your West Africa and this is your Central Africa. यहाँ पे उस समय बहुत सारे किंगडम्स थे, अफ्रीकन किंगडम्स थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे. They had a lot of prisoners of war and criminals. अब criminals को हटाना है, अपने टेरिटरी पे नहीं रखना है. यूके ने उनको बोला कि ठीक है, आप अपने क्रिमिनल्स को या फिर एक्स्ट्रा लेबर फोर्स को गिव इट टू अस, हम उनसे काम करवाएंगे, लेबर का काम करवाएंगे, एंड we'll take them far far away from you, and in return we'll give you arms and guns and all of it. Now that was again a very smart idea कि आप guns and arms दे रहे हैं, which will eventually lead to more fighting and violence in the African kingdoms. But a lot of people, without their will, families or not only criminals or prisoners of war, बहुत सारे लोगों को, in return for money and guns, these African kingdoms just deported them. और क्योंकि आपका अटलांटिक ओशन was the route, और ये सब आपके इस साइड ही ईस्टर्न टेरिटरी में जाके सेटल हो रहे हैं, it became as transatlantic slave trade, because ये अटलांटिक ओशन के थ्रू होता था. Atlantic Ocean has a very very bloody history. और कुछ आपके ब्राजील और करीबियन आइलैंड्स में भेजे जाते थे, क्योंकि वहां पे शुगर प्लांटेशन था, ब्राजील में कॉफी प्लांटेशन था. तो प्लांटेशन में काम करने के लिए स्लेव्स चाहिए, यू डोंट इवन हैव टू पे देम, एंड लेबर इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस स्टार्टेड हैपनिंग. The amount of land which was available in North America, ये ब्रिटिश के लिए it was like, oh my god, यहाँ तो लोग ही, मतलब tribes तो बहुत sparsely populated है. We need a lot of people, and we need to put farmhouses and industrialization करना है, urbanization करना है. We have to develop it, and it is so barbaric and uncivilized, and ये सारा चीज. तो आपके स्लेवरी का शुरुआत होता है. शुरुआत इसका हो जाता है 1500 से. बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स में इट इज 1700. बट आपके सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से स्लेव्स भर भर के, इफ आई शो यू द मतलब जस्ट लुक एट दिस शिप, लोगों को कैसे, मतलब जस्ट दे आर टाइड डाउन, एंड
being deported. Also, if you study history, you will understand that every 100 years there is a pandemic or an epidemic. So abhi COVID, इससे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू इसलिए नहीं क्योंकि स्पेन में हुआ था. स्पेनिश फ्लू टुक प्लेस इन यूएस एंड यूके. स्पेन ने इसके बारे में लिखा था क्योंकि और कोई मीडिया हाउस लिख नहीं रहा था. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेनिश फ्लू. उससे पहले 100 साल पहले कॉलेरा हुआ था. उससे 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स हुआ था. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि किसी भी आप ऐसे आप, और ये तो इंसान है, इनको आप ऐसे भर के ले जा रहे हो, यू आर जस्ट लाइक कैरिंग देम ऑल along with animals like horses and cows and buffaloes, भर भर के जानवरों के साथ डाला जा रहा है. तो जब डिजीजेस होते थे, मान लो किसी को हो गया, there is no cure of smallpox at that point of time, no cure of cholera, so they'll throw a live person. मान लो कोई लेडी है प्रेग्नेंट, if she catches the disease, सबको अटलांटिक ओशन में जिंदा फेंक दिया जाता था. Because you can't cure और ये infectious है. And ये 16 to 19 सेंचुरी तक चला. आपके स्लेव सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका से लिए गए. पोर्टुगीज सबसे पहले थे 16 सेंचुरी में स्लेव्स खरीदने के लिए. एंड पोर्टुगीज वेर एबल टू डू इट बिकॉज पोर्टुगीज ने सबसे पहले शिप्स के ऊपर जो नेविगेशन का है उस पर बहुत काम किया. एक कॉन्सेप्ट आया इंडेंचर्ड सर्वेंट्स का. इंडेंचर्ड सर्वेंट्स मतलब आज के जमाने में जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, कि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपका ये रूल रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो ABC एंड दैट इज इट, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय तक है एंड ऑल ऑफ इट, फिर रिन्यू होगा नहीं रिन्यू होगा व्हाटएवर. उसको इंडेंचर्ड सर्वेंट बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्वेंट हो और जो आपके एग्रीकल्चरल फार्म्स में ये सब में काम करे. स्लेव्स को इंडेंचर्ड सर्वेंट्स के नाम पे जो शिप वाले होते थे, जो शिप के मैनेजर्स होते थे, वो जबरदस्ती उनका मोहर साइन या फिर अंगूठा लिखवा लें. एंड उनके कॉन्ट्रैक्ट में कभी लिखा नहीं होता था कि कब खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट. Also there was this legal doctrine which was called as partus sequitur ventrum, which meant कि that which is born in the womb follows the womb, which is अगर माँ आपकी स्लेव है तो बच्चा भी स्लेव होगा ऑटोमेटिकली. It was a legal doctrine in America. तो ये 1662 में था. उसके अलावा स्लेवरी का जैसे as you can see all these they are working in cotton plantations, the slaves that you can see here, all of them from Central Africa, और छोटे छोटे बच्चे. The younger a child, the more price he or she will fetch in the market. जैसे you can see chickens को cages में डाला जाता है, वैसे इंसान को cages में डाला जाता था. And दोनों साइड रोड के there are big cages जिसमें इंसान को भरा हुआ है ये अफ्रीकन्स को, and they are all tied down and in clutches and they are sold off. And जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, you get a receipt, right, कि you have paid this much और ये टैक्स and ये and all. किसी इंसान को भी खरीदने के लिए वो रिसीट मिलता था. 10 pounds, 20 pounds, whatever you have bought it as. और अगर कोई भाग जाए, as you can see in the right side, $150 रिवॉर्ड है इसको पकड़ने के लिए. ये भाग गया है, not a missing person, but ये भाग गया है. So that was the amount of exploitation which was there. और जब अफ्रीका से स्लेव्स को डिपोर्ट किया जाता था तो उनको पहले फैक्ट्रीज में बंद करके रखा जाता था, क्योंकि आपने देखा कि शिप कितना बड़ा है, तो यू आर डिपोर्टिंग ऑलमोस्ट लाइक 50,000 पीपल. तो उन सबको फैक्ट्री में बंद करके रखा जाता था. फिर शिप आती थी, फिर उनको उसमें ठूसा जाता था, भरा जाता था. In 400 years, there were almost 13 million Africans who were deported. 1.2 million died because of smallpox and cholera. And the bodies will be still, somewhere.
in the Atlantic Ocean. They were not taken to. Why will be they taken to the territory of America? तो Atlantic Ocean में फेंक दिया. मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ये सारे के जिनको भी इन्फेक्शन हुआ था. Now, why did British colonialism start? So, 3 empires बहुत important है. एक है Byzantine Empire, जो क्रिश्चियन था in nature. Then Ottoman Empire, जो इस्लामिक था. और then you had British Empire. अगर मैं in terms of power बताऊं, तो ब्रिटिश colonialism को बहुत जरूरत थी कि just look at this map. मतलब अल्जीरिया, ट्रिपली, मतलब आपका टूनिशिया, इजिप्ट, एनातोलिया यानी टर्की, सीरिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आपका रोमानिया, बल्गेरिया, बाल्कन लैंड्स जो उस तरफ के हैं, यहां तक पूरा आपका ऑटोमन एम्पायर आ चुका था. एंड यूके हैड एन इशू, क्योंकि कैसे, लाइक हाउ विल यू, इफ यू क्रॉस, you are going to face the Ottoman army. And ये इसको कंट्रोल भी करना था. It was also a war of religions, it was also a war of politics. तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक अलग एम्पायर शुरू करना था, which could destroy the Ottoman Empire, which will eventually be destroyed in the First World War. So British colonialism start हुआ apart from the fact कि उनको gold चाहिए था. It also started to find an alternative trade route and to destroy the Ottoman Empire. The gold rush was obviously there. They'll go to all these islands, and अगर वहाँ के tribals नाक में gold का पहने हुए हैं, कान में पहने हुए हैं, they'll just cut the ear, cut the nose, whatever. अब देखो, history is so scintillating, you will never have evidence of it. These are then not facts. Did they not happen? They happened. But what is the evidence of it? और उसके अलावा उनको इंडिया से स्पाइसेस चाहिए था, और इंडिया से स्पाइसेस लेने के लिए आपको ऑटोमन एम्पायर के थ्रू क्रॉस करना होगा, और बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस्लामिक ट्रेडर्स सेल करते थे, उनसे नहीं खरीदना था. सो दे वांटेड देयर ओन स्ट्रॉन्ग होल्ड. वन ऑफ द रीजंस व्हाई साउथ अफ्रीका वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड, कि वहां से जाएंगे बिफोर द सुएज कैनाल वाज फाउंड टू गो टू इंडिया. इसके बाद फिर आता है आपका 7 years ऑफ वॉर. 7 साल का वॉर आता है. ये 7 साल का वॉर अगर आप हिस्ट्री में अलग अलग स्कॉलर से पढ़िएगा तो कोई कोई बोलेगा कि सिर्फ यूएस में हुआ था या अमेरिका में हुआ था. अमेरिका, अगेन आई मीन यूएस, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. The 7 years of war took place in Asia Pacific also. It took place in the American territory also. अमेरिका में फ्रांस के पास 60,000 सेटलर्स थे. यूके के पास 2 million सेटलर्स थे. तो फ्रांस और उनके ट्राइब्स लड़े, और यूके और उनके ट्राइब्स लड़े. दोनों पार्टी लड़ी और यूके जीत गया ये 7 साल का वॉर. Canada was then taken over by the British. At the same time, remember कि they played the same game in India. You had the Battle of Plassey, 1757. Nawab of Bengal was with France, but UK, British won. So आपका ये 7 साल का war was not only being played in one territory. UK और France, जहां जहां भी उनका एक ही जगह पे colonialism है, वहां पे वो they were fighting these wars and they were trying to take it over. अब यूके जीत गया, फ्रांस ने सीज कर दिया प्रॉपर्टी, स्पेन ने भी सीज कर दिया प्रॉपर्टी. स्पेन के पास तो बहुत कम ही था, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको था, तो वो भी हार गया, छोड़ दिया. अब पूरा का पूरा एरिया जो है ब्रिटिश रख लिया. तो अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या हुआ, मतलब व्हाई डिड दिस हैपन? अब तो यूके को खुश होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है हम जीत गए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज देयर वर 2 प्रॉब्लम्स दैट वर हैपनिंग. पहला ये प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो लोग भी सेटल हुए यहाँ पे, सेटलर्स थे, तो वो बाय ब्लड ब्रिटिश, लेकिन उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी ना वोटिंग का हक था, ना रिप्रेजेंटेशन था.
उनको खुद ऐसा फील होने लगा कि हम जैसे आउटसाइडर्स हैं, और ऐसे भी वो डिसेंटिंग क्रिश्चियंस थे कि हम जैसे आउटसाइडर्स हैं और हमें यूके अपना लंदन से बैठ के रूल कर रहा है. And they fought amongst the British Empire. And they said कि we will now start our new origin, new etymology, new name, and we'll call ourselves Americans. थे वो ब्रिटिश बाय ब्लड लाइन, कोई स्कॉटिश होगा, कोई आयरिश होगा, कोई वेल्श होगा, लेकिन देन दे डिसाइडेड दैट दे विल कॉल देमसेल्व्स अमेरिकन एंड दे विल नॉट बी ब्रिटिश एनीमोर. अपने खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी. इसके दो मेजर रीजंस थे. पहला रीजन था द स्टैम्प एक्ट विच टुक प्लेस इन 1765. स्टैम्प एक्ट मतलब क्या? जैसे अगर कभी आप एफिडेविट बनाते हैं तो यू नीड टू गो टू अ नोटरी, एफिडेविट बनाने होता है आपका, एंड रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, एंड ऑल ऑफ इट, राइट? तो यूके ने बोल दिया कि जितने भी सेटलर्स रह रहे हैं, मतलब उसी के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको कोई भी चीज वो करे, मतलब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से लेके उनको अपना घर रेंट पे देना है, से लेके दे वांट टू हैव अ पार्टी इन देयर हाउस, से लेके एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर मेड के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या दे आर डूइंग एनीथिंग, न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं, उनको रेवेन्यू स्टैम्प पे करना होगा ब्रिटिश के. कोई भी सिंपल पेपर पे नहीं चलेगा, ब्रिटिश स्टैम्प जरूरी है. And the British settlers in America were like, what is this? Why? Why do we have to do this suddenly? And it is expensive to buy the stamps. It is not just कि एक मोहर खरीदना है आपको, वो पूरा पेपर खरीदना है. So it was like ये क्यों कर रहे हैं? Why are they interfering with our lives? हम मतलब why are they doing this? Why do I need a affidavit if I want to apply for a job? Why do I need an affidavit if I want to search for houses, or give my house on rent, or have a party in my house, or do anything? Why do I need a stamp paper for that? And the bureaucracy of these people. और दूसरा था बॉस्टन टी पार्टी. ना टी पार्टी का मतलब ये नहीं कि अरे अरे डियर सब लोग आओ चाय पियेंगे, ना. टी पार्टी का अलग पॉलिटिक्स था. टी पार्टी वाज बॉस्टन, जो आप देखे कि इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास क्योंकि वो एक कंपनी थी तो उसके पास बहुत सारा टी प्रोडक्ट्स था फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम चाइना, बहुत ज्यादा. एंड दे वांटेड उस चाय को they wanted it to be mandatory in US, कि लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चाय खरीदें जिसमें टैक्स वैक्स भी पे करना है. लेकिन ऑलरेडी नेदरलैंड्स का चाय जो था वो बहुत फेमस था आपके ब्रिटिश कॉलोनीज में. तो ईस्ट इंडिया कंपनी हटाना चाहती थी. दे वांटेड टू क्रिएट देयर ओन मार्केट, कि हम यहाँ आसाम दार्जिलिंग से चाय ला रहे हैं, यहाँ देखो डच पी रहे हैं. तो उन्होंने टैक्सेशन लगा दिया. अब इन लोगों को आया गुस्सा. ये क्या, हम चाय भी पीने के लिए, मतलब चाय भी हम क्या मतलब, आई अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली, मतलब चाय इज अ वेरी पर्सनल थिंग. सो चाय पीने के लिए भी मतलब हमको अब इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, लंदन वालों से, कि कहाँ से चाय पिए, क्या करें नहीं करें. तो टी पार्टी वाज नॉट एक्चुअली अ पार्टी. उन्होंने क्या किया कि एक पूरी शिप भर के ईस्ट इंडिया कंपनी की अटलांटिक ओशन क्रॉस करके बॉस्टन पे आ रही थी, चाय का पूरा एज यू कैन सी डब्बा लेके, वो पूरे के पूरे शिप को जला दिया as a revolt. That was the Tea Party, Boston Tea Party, which happened in 1773. And these were the two major reasons कि they were like, नहीं हमें तो अब आजाद होना है, and we cannot be under this British Empire anymore, and we need to be our own country. United States of America has to be born. We cannot be under this kind of surveillance. दूसरा जो था जैसा जालियांवाला बाग में 1919 में हुआ था जनरल डायर के थ्रू, बॉस्टन में ऐसा ही हुआ था. वहां के जो सेटलर्स थे, जो ब्रिटिश देमसेल्व्स थे, उनको वहां के ब्रिटिश जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने फायरिंग के ऑर्डर देके एकदम वॉल के पास खड़ा करके किल्ड एवरीवन हूएवर वाज डिसेंटिंग.
So it was called as in history as Boston Massacre. तो ये 3 चीजें हुई and then they decided कि नहीं, we have to get out from this entire tutelage of colonialism and we'll declare ourselves independence. हमें उनसे मांगना भी नहीं है, we'll declare ourselves independence. हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, बस हो गया. तो आपका फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन. जॉर्ज वॉशिंगटन के दादा आए थे अमेरिका एंड ही वाज लाइक अ ब्रोकर, रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं होता, वो प्रोफेशन था. एंड देन फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम पे ही वेंट गोज इनटू वर्जीनियन मिलिट्री, 7 years वॉर में भी ये लड़ा था. उसके बाद वो फिर देखा कि नहीं नहीं बहुत खराब हो रहा है, देन ही फॉट, ही वाज अ मिलिट्री जनरल and then it was decided we'll have something called as democracy and he'll be the first president. This person on the right is Thomas Jefferson, who wrote the Constitution of US. Now why am I highlighting them? Both of them are white. मतलब I don't know painting से कैसे दिख रहा है. Both of them are white. Both of them had no problem in having slavery legalized in the American Constitution. मतलब slavery अभी भी चल रहा है. It has not been illegal. Democracy and slavery साथ में कैसे चल सकता है? Thomas Jefferson, they gave 2 hoots about it. Next thing is कि अभी तक मैंने आपको बात किया ईस्टर्न साइड का. I am not talking about the west. तो वेस्ट में कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, वॉशिंगटन स्टेट है, सियाटल है, ये सब बहुत फेमस है. आज के दिन बहुत फेमस है. कैसे बहुत फेमस हो गया? तो आपका 1849 तक there will be something called as gold rush. अचानक से गोल्ड पाया जाएगा कैलिफोर्निया में, अचानक से. एंड भागेंगे सब वहां पे कैलिफोर्निया के साइड. अब ऑब्वियसली वो गोल्ड खत्म हो गया. Everyone ran, all these people, and they're like, मैं पानी से गोल्ड निकल रहा है. It was that palpable. इतना ज्यादा prevalent था गोल्ड. And they are finding gold, and उसके बाद फिर they are excavating it and they are selling it and they are becoming industrialists and very famous. But again, वहां पे जो native Indians थे उनको बहुत मारा गया, उनका लैंड ले लिया गया. और उसके बाद फिर आपका वेस्टर्न कोस्ट ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. ईस्ट और वेस्ट एस्टैब्लिश कर दिया. आज भी आप यूएस के सेंट्रल पार्ट्स में जाइएगा, द स्टेट्स इन द सेंटर, दे आर नॉट एज डेवलप्ड, दे आर क्वाइट रूरल. आपका ईस्ट और वेस्ट डेवलप्ड है. तो अगर कोई बोलेगा कि यूएस कंप्लीटली इज अ डेवलप्ड कंट्री, दैट विल अगेन बी अ पॉलिटिक्स ऑफ डिमेंशिया कि व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल स्टेट्स. तो कैलिफोर्निया गोल्ड रश में बहुत लोगों को मारा गया. एंड ये जो साइड है पूरा कैलिफोर्निया का, दिस वाज देन स्लोली एंड स्लोली inhabited. अब after United States of America is born 1776 4th of July में, what was the situation which was there? As you can see, आपके इतने सारे टेरिटरीज हैं. जो टेरिटरीज आपको दिख रही हैं रेड में या पिंक में, these are slave states, यानी कि यहाँ पे स्लेवरी लीगल है. जो आपको ब्लू में दिख रही हैं नॉर्थ में, these are फ्री स्टेट्स जहाँ पे स्लेवरी अलाउड नहीं है. बाकी के कुछ जो स्टेट्स बने हुए हैं वो अनरिकग्नाइज्ड टेरिटरी था, या फिर उनका नाम नहीं था, या फिर वहां पे कोई लीगल ऐसे फेडरल सोल्यूशन नहीं था. जो ब्लू वाले स्टेट्स हैं, आयोवा, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, मेन, वर्मोंट, रोड आइलैंड, कनेटिकट, न्यू जर्सी, these were called as the union. एंड जो पिंक और मरून में आपको दिख रहे हैं, जो साउथ में है, जहां पे स्लेवरी लीगल थी, they were called as the confederates. अब हम आते हैं 1881 में. 1881 में अब्राहम लिंकन
became the president. And Abraham Lincoln की presidency में American Civil War शुरू होता है. Many people say कि American Civil War was a fight of Abraham Lincoln with Abraham Lincoln. As in, Abraham Lincoln जब वो president बने, उस समय he was not, मतलब he didn't have any kind of view about slavery कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. He was a lawyer. But during the course of the war, his character changed and he understood the exploitation of slaves and then he fought against slavery. So what exactly happened in this 5 years? The American Civil War took place in 1861 to 1865. यहाँ पे concept आया deadline का. Deadline का मतलब ये नहीं होता है कि just a deadline के कब तक हमें काम खत्म करना है. Deadline का मतलब होता था actually coming from here American Civil War. जितने भी prisoners होते थे उनके चारों तरफ एक line बनाई जाती थी. And if they will cross that line, they will be shot dead. That is by deadline. The basic fight was between the North and the South. And it was a very bloody war. बहुत ही bloody war. बहुत लोग मरे हैं. Just imagine कि these many states like Texas and Florida and all, they are fighting कि नहीं, you should have slavery. And जो blue वाले states हैं, they are fighting कि नहीं, it should not be. अब blue वाले states का अचानक से क्यों इतना suddenly why are they anti-slavery? There was a political reason and a spiritual reason. The political economic reason was कि blue वाले states आपके ज़्यादा urbanized थे, उनके पास railways था, उनके पास machines थी, factories थी, didn't need labor much. जो आपके south के states थे, they were underdeveloped. वहाँ plantations ज़्यादा थी, उनको labor की बहुत ज़रूरत थी. दूसरा ब्लू वाले स्टेट्स में आपका फिर से रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्रिश्चियनिटी का प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का होता है कि अच्छा स्लेवरी इज अ सिन आप किसी और को यू आर कमिटिंग सिन सो दे आल्सो फॉट ऑन द इवेंजेलिकल साइड ऑफ इट और ये बहुत बड़ा as you can see it goes on for 4 years and finally the union wins तो आपके जो 50 states हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के they did not become यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका happily they were annexed they were taken over or they were bought and there was a bloody civil war that took place and a lot of people died क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स है उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लीगल बोला है why should we abolish it हमारा लेबर फोर्स खत्म करना चाहते हो you had statues of leaders who were confederates जैसे we have statues of our leaders they were worshipped literally or there was this Al Jazeera documentary I was following जिसमें टेक्सास में one of the reporters a white man उसके टेक्सास में जो grandparents थे वो लोग रहते थे तो he did a documentary of going back to his roots and finding out तो दो African professors से वो बात कर रहा था and suddenly the African professors asked him did you matlab when you were growing up did you have any Africans working in your household तो बोला हाँ we had a maid तो they said what is the name of the maid तो he told the first name जैसे मैं आपका नाम बोलूं वैष्णवी राधिका सुजल whatever so the African professor said what was the full name and he couldn't think of it क्योंकि उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था that a slave or a person who is a maid or worker or labor for you can have the dignity of a full name. It is so normalized. It's the same thing. How many of you know the names of your security guards, maids, cooks, drivers, full name, where they come from? What is the history? We don't. It is so normalized. So आपका ये American Civil War चलता है. Eventually, there is this place in Pennsylvania, जहाँ पे Abraham Lincoln
gives the famous Gettysburg Address in 1863. वहां पे सोल्जर्स का सिमेट्री था, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी. अब्राहम लिंकन वहां पे स्पीच देते हैं. And the speech that he gives, which is very famous, it was only of 271 words, but उसमें most important is कि government of the people, by the people, for the people. So democracy is of the people, by the people, for the people. ये अब्राहम लिंकन का कोट आया था फ्रॉम गेटिसबर्ग एड्रेस. गेटिसबर्ग उस जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया में. And he then abolished slavery. That now it will be illegal. तब तक आपका मतलब ऑलमोस्ट 87 years हो गए थे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, but it still continued. Abraham Lincoln was then assassinated by a stage actor called as John Booth. He was assassinated and killed. He went to watch an opera and he was killed. And this person who killed him was कि आप कैसे, how can you abolish slavery? So US has a history of all of this. I'll just take a 2-minute break. So he was attacked by John Booth. He was a stage actor. और ये slavery के promotion में था, obviously a white man. And he killed Abraham Lincoln and he passed away. उनके death के बाद there were major other changes that took place. Slavery continued to be abolished. धीरे धीरे करके एक एक स्टेट ने लीगली उसको abolish किया. अलास्का को रशिया से परचेज कर लिया गया यूएस ने 140 मिलियन में. हवाई को अनेक्स किया 1898 में. पोर्टोरिको को यूएस में डाल दिया, एनेक्स किया. करीबियन आइलैंड्स का पार्ट है वो. गुआम आल्सो. फिलीपींस को भी ले लिया. फिलीपींस वाज कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ हिस्ट्री. उसके बाद जब स्पेन सीड कर दिया, छोड़ दिया, तो यूएस टुक ओवर. अमेरिकन फिलिपिनो वॉर हुआ फिर. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड दिस पोएम, अ वाइट मैन्स बर्डन. मतलब कि ये पूरा जो अनसिविलाइज्ड ब्राउन सोसाइटी है, ये एक वाइट मैन का बर्डन है. रडियर्ड किपलिंग ने ये पोएम लिखी थी. ये अमेरिकन फिलिपिनो वॉर के दौरान उसने लिखी थी. एनीवे 1946 में फिलीपींस यूएस स्ट्रॉन्ग होल्ड से, colonialism से आजाद हो जाएगा. And then they took over US Virgin Islands. They purchased it in 1917. So आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे दिखता है? You have Alaska इधर ऊपर, कनाडा के बगल में, here, right? Which was taken over by Russia. Then you have इस side Puerto Rico. You have Hawaii Islands, Hawaiian Islands, जिसमें Honolulu is the capital. Honolulu is very important because it is a very important naval and aircraft base. US Virgin Islands, very important because they are essential as tax saving heavens, जहाँ पे आप shell companies शुरुआत कर सकते हैं, and then you can have investment, and these are like Swiss banking, taxation का different concept है. And Puerto Rico. But understand, Puerto Rico was not actually America जब उसको Columbus ने ढूंढा था. आपका capital Washington DC है. Right now the president of US is Biden. Kamala Harris is the vice president. And Biden would be most probably visiting India during the G20 summit. So